نیلوفر جی ہند طرف تو پنہ طرف کر بہ سارے خوش آمد منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ خلوصس امس ٹیم رمن جی سونیا جی یا باقی ات ٹیمس کر بہ مبارکباد آج آپ نے دکھایا واقعی چھو کمیونٹی صحیح ترجمہ تکبیر نعرہ رسالت قریبس من اس تو میس بد سن شکر گزار آئے سہ میون تہ شکر گزار کی لہذا اس زن شہری کشمیر سن کنٹری پسند ایسے فراموش کرنے کی نہ کسی میں یہ طاقت ہے ہمت ہے کہاں ہے کہ کسی جنت جہنم سرٹیفکیٹ دیت نو ناٹ ایٹ آل جنت اور جہنم کا فیصلہ اس کرن وول سہ کرن وول کچھ رب جلیل اللہ تعالیٰ سون مگر یم وقت اس بوزان چھ پنن بزرگ نش یم وقت اس پران یہ کس حال اس اگر یہ مکئی تیار گسان بچہ ونان پتہ اس آسان سون یہ جد بربر اس کران تیار یہ فصل پتہ لکٹ بچہ ست دپس بابا مے ٹائم مز مکائی وٹ تس اجازت دان سہ مکائی وٹ دلس کی خلوصس امس ٹیم رمن جی سونیا جی یا باقی ات ٹیمس کر بہ مبارکباد آج آپ نے دکھایا واقعی چھو کمیونٹی صحیح ترجمہ تکبیر نعرہ رسالت زونل پریزیڈنٹ نارتھ جناب جاوید احمد ڈار صاحب پلیز کم آن ڈائز اینڈ شیئر یور پریشیس ورڈ ود اس جناب گزارش کروں گی صدر محترم جناب ڈاکٹر سجاد صاحب کو اسٹیج پر آئے اور ہمیں اپنے خیالوں سے روشنا کریں سکھ اتحاد کا نعرہ اور وہ نعرہ تبھی کامیاب ہو سکتا تھا جب ہم اس جماعت کو مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس میں تبدیل کیا کیونکہ ہمارے لیے سب لوگ ایک تھے کہ ہمارا ہندو بھائی تھا ہمارا سکھ بھائی تھا ہمارا بودھ بھائی تھا اور ہمارے مسلمان تھے کیونکہ ہم مسلمان یہاں پہ میجارٹی میں لیکن ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی ہمیشہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں خاص طور پہ ہماری سکھ برادری نے ہمیشہ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کا ساتھ دیا اور امید ہے کہ آگے بھی نیشنل کانفرنس کا ساتھ دیا. نیشنل کانفرنس ایک تاریخ ہے, اس تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا. کئی نشیب و فراز آئیں گے, کئی قوتیں آئی ہیں, پہلے بھی آئی ہیں اور آگے بھی آئیں گے. نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی کوشش کی, نیشنل کانفرنس کو دبانے کی کوشش کی, لیکن جب ان قوتوں نے نیشنل کانفرنس کو دبانے کی کوشش کی ہے, پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے, تب نیشنل کانفرنس جو ہے اور مضبوط ہو کے آگے ابھری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ابھرے گی. اور آنے والے ان کی وہ زمینیں جو تھی ان کو ان کا مالک بنا دیا گیا. ایک دن جب مرحوم شیخ صاحب نے وہ قانون لایا, ابھی یہاں پر لیڈران صاحب نے صحیح بات کہی کہ زبان اور ایسے حقاقت کرے. ہمارے حقوق تھے, ہم بات نہیں کر پاتے تھے, لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ مرحوم شیخ صاحب کی ہی دین ہے جو ہم آگے آپ کی طرف بڑھاتے ہیں. آپ کا زیادہ وقت میں لیتے ہوئے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, خصوصاً مہمانوں کا کہ وہ یہاں پر آئے, انہوں نے اس محفل کی رونق بڑھائی اور وہ رونق بھی ہے. میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس گرمی میں آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, بدقسمتی سے ہم نے بہت بڑا ہال کیا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ لاسٹ مومنٹ پر کٹ کرنا پڑا, جس کی بات میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور پارٹی کو کامیابی حاصل کرنے میں آپ مدد کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
दिल खुश हो गया। ये इसकी पहली मीटिंग नहीं है। जब हमने इसको इलेक्ट किया था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला वुमेन्स विंग, उसके बाद भी इन्होंने एक मीटिंग करी, वो भी बहुत शानदार मीटिंग थी। आज इसकी दूसरी मीटिंग है, ये भी बहुत शानदार मीटिंग है। मुझे पता है मीटिंग के लिए कितनी मेहनत इसने और इसकी टीम ने की। ये आप सबको मुबारकबाद है, क्योंकि आप मीलों का मजदूर से पीछे यहाँ पर आए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो आप वो इस बात की तस्दीक है जो आप यहाँ पे आज हॉल में बैठे हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में बैठे हैं और इस बात की तस्दीक है कि पढ़ी लिखी लड़कियां कॉलेज में जो है और बुजुर्ग यहाँ पे जिनको ये शऊर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बेहतरीन तंजीम है जम्मू कश्मीर में, जिसका साथ हर औरत को देना चाहिए। सीनियर लीडर साहिबान है जिन्होंने यहाँ पर बारामूला किए हैं, उन्होंने सभी जो अपने ख्यालात से नवाजा है और बहुत ही उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम अभी अपने दिमाग में ही सोच रहे हैं कि किसने क्या कहा और कितनी अच्छी बातें होती हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्ग लिए हैं। मैं यहाँ पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। जो आज के जो हालात है, जो हमारा हम लोग देख रहे हैं, तूफान मचा हुआ है, बेशक तूफान मचा हुआ है। सिर्फ हमें इस आंधी का अभी एहसास नहीं है। जब यहाँ पे जब आंधी आती है तो हमें उसका एहसास उस वक्त होता है जब हमारे मकान गिर जाते हैं, जब हमारी छतें उड़ जाती है, जब हम खत्म हो जाते हैं, हमारा असासा खत्म हो जाता है, तो हमें लगता है कि आंधी आ गई। लेकिन जो खामोश आंधी है जिसका हमें यहाँ के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको शायद मुझे लगता है एहसास है, लेकिन शिद्दत से एहसास नहीं है। इसलिए मैं एक शेर डॉक्टर सरवर इकबाल का यहाँ पे कहना चाहती हूँ। उठो मेरे गरीबों को जगा दो, उठो मेरे गरीबों को जगा दो, बाको उम्रा के दरो दीवार जाओ। हमें हमारी ड्यूटी है, हम यहाँ पे आ गए, हमने नीलोफर जी को कहा कि यहाँ पर एक मीटिंग रखे, एक कन्वेंशन रखे, ताकि हम अपनी जो हमारी अजीज खवातीन है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनसे हम आगे दो बातें करें। लेकिन मैंने क्यों ये शेर कहा? हमें इस शेर की जरूरत है। हमें न सिर्फ गरीबों को, हमें कश्मीरी कौम को जगाना है। हमें इस हमें घर घर जाना है और घर घर दस्तक देनी है और उनको कहना है कि आप देखिए कि हमारी कितनी दुश्वारियां हैं, हमारे कितने मुश्किलात हैं। इस वक्त जब भी 5 अगस्त से हम क्या क्या सह रहे हैं कि हमारा कहीं पे वजूद ही नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को मिले हो, अगर आप हमें अफसोस है, आपको शायद ये बयान चीफ सेक्रेटरी का मालूम होगा, जब चीफ सेक्रेटरी ने कहा हम कहाँ से नौकरियां लाएंगे, हम क्या प्लेट पर हमारे यहाँ पे प्लेटर पे देंगे नौकरी, जब क्वालिफाई करेंगे तो तब नौकरी देंगे, वरना नौकरी पॉसिबल है नहीं। क्योंकि इन्होंने ये सारी जो हमारा हक है, जिसको शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने खून से, अपने जवानी के हसीन और रंगीन जो उनके अजीम दिन थे, उनको कुर्बान किया है। 22 साल जेल के नजर किए। क्यों? क्योंकि हमें इज्जत और आबरू का और जो हमारा हक है वो हमें मिले। आज कहाँ है वो? आज वो हक की कौन बात करेगा? अगर आज हम देखें कि हमें बैंक में आप देखें 1250 लोगों की वहां अपॉइंटमेंट हो गई जम्मू कश्मीर बैंक में, जो हमारा बैंक था, जिसको शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने हाथों से बनाया। यहाँ के मेजॉरिटी के लिए उन्होंने कहा था जो कश्मीर में रहते हैं
वक्त में आ गई। और बाकी जो हमारी रियासतें हैं, जम्मू है, बाकी है, वहाँ के खुद भी देखा होगा कि जोग दर जोग जो औरतें आई थी दूर दराज इलाकों से, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि औरतें इस तरह से आएंगी कि हम, लेकिन इतना सारा जो उनमें जोश है, बलबला है और आगे बढ़ने का और देखने का, क्योंकि जो इस वक्त कश्मीर के साथ हो रहा है, यहाँ के लोग अब समझ रहे हैं, यहाँ की औरतें अब समझ रही हैं, उनमें जो सियासी शऊर है वो बेदार हो रहा है, तो वो समझ रहे हैं कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है। 5 अगस्त के बाद जो हमने देखा, जो हमारा वजूद है जो हिला दिया गया बीजेपी की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, वादा खिलाफ़ी की है, जो बहुत सालों पहले नेहरू जी ने वादा किया था, उस वादे पे हम जी रहे थे। और उसी वादे पे जो हमारा जो ये स्टेट था, एक अलग हिस्ट्री है इसकी, लेकिन उन्होंने उस हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहा और यहाँ की जो हमारी ताकत थी उसको ख़त्म करना चाहा, जो हमारा वजूद है उसको ख़त्म करना चाहा। तो इसलिए हम यहाँ के लोगों ने अब वो समझ रहे हैं। पहले तो वो ख्वाब ख्याल में ही थे, वो सोच रहे थे शायद मत ये अभी हम ये कोई दस्तक दे रहा है, अभी शुरुआत है, लेकिन अब उनकी समझ में आ गई जब हमने देखा नौकरियां हमें नहीं मिल रही है, हमारी ज़मीन छीन ली गई है, हमसे आर्मी को दिया जा रहा है, उनको जहां पर लीज़ है वो उनकी ही ज़मीन बनाई जा रही है। तो यहाँ पे जब ज़मीन भी नहीं रहेगी, जब यहाँ पे स्टूडेंट जो इतने पढ़े लिखे नौजवान लड़कियाँ हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे, हमारे घर हमसे एक बहाने, दूसरे बहाने, तीसरे बहाने वो छीन रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं, चाहे कोई कसूरवार हो या कसूरवार ना हो। अगर कोई कसूरवार हो तो हम समझते हैं कसूर किसने किया है, लेकिन अगर किसी घर में कोई भी बंदा जाता है और उसमें कब्ज़ा करता है, फिर वो मिलिटेंट होता है कि घर वालों को पता भी नहीं होता, लेकिन ये बेदर्दी से उस मकान को सील करते हैं, उनके घर वालों को वहाँ से निकालते हैं, वो सड़क पे आ जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को अब इसका एहसास हो रहा है। तो और रिसेंटली उन्होंने 25 लाख कहा, 25 लाख लोग वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हमें हैरानगी हो रही है। अगर इन्होंने कहा 25 लाख लोग या 50 लाख लोग या 10 लाख 20 लाख, तो इसका मतलब है वो जो यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज करना चाहते हैं, वो इसको एक डिफरेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने इसको यूटी बनाया, तो अब ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, इंशाल्लाह मैं स्टेट ही कहूँगी, मैं यूटी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने यूटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। पर्सनली मैंने यूटी को एक्सेप्ट नहीं किया और नहीं करूँगी, इसलिए वो इसको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ जो माशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बेसिक जो है, यहाँ पर हम जब मेंबरशिप देते हैं, हम औरतों को भी देते हैं, तो औरतों को उनकी जागृति के लिए, उनके पास बातचीत करने के लिए, उनको जगाने के लिए हम यहाँ पे आए, एक कन्वेंशन किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी आज़ाद साहब के न दिल में है और न दिमाग में, न मुझे पता है, और मैं कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अलबत्ता आप भी सोच सकते हैं, तो हम भी सोचते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ तो हो जिसकी पर्दादारी है, लेकिन हम नहीं कह सकते क्या है। कॉन्फ्रेंस थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आएगी, और जो बिगल बजा है जो ही और बजेगा इलेक्शन का, बीजेपी को हम और भी ये ABCD जो जमातें हैं उनको हम एक ऐसा तमाचा मारेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। मैडम क्या इनको डर है एनसी का? बेशक हर एक को एनसी का डर है, क्योंकि ये पता है एनसी आएगी इंशाअल्लाह रहमान।